So last time we took a look at basic puzzles, right? We'll start with a simple puzzle again today and then take a look at a few more interesting ones. Starting with a simple one. Six friends in a group in different professions, but it also includes the data of two married couples. So you have to identify the profession of each person, the gender if possible, and also the married couples in this group. Good evening, sir. Good evening.
मैं सबके कपल बना दिए, चेक करो। पता है? ओके नहीं क्या है? सर डी हाउसवाइफ है, सी अकाउंटेंट है, फिर एफ है वो प्रोफेसर, ए इज एन इंजीनियर, ई मे बी अ लॉयर एंड बी अगेन हाउसवाइफ. couples आर सर एक कपल किया ए हाँ कपल्स ई एंड डी और ए बी. let's see. So it says that ABCDEF group of friends, 2 housewives, a professor, engineer, accountant, lawyer, and only 2 married couples. Now it is said that the lawyer is married to D, who is a housewife. So D technically is a housewife. So if D is a housewife, then D cannot be anything else, and nobody else is this particular housewife. And it is said that D, the lawyer is married to D. So D is also married to the lawyer, right? So D का lawyer नहीं होता है, eliminate हो ही गया. So next we get D is married to a lawyer. D is married to a lawyer. So D is married to a lawyer. If I put it like this. D का husband है वो lawyer है. तो आपने D में क्यों lawyer ये housewife के अंदर डाला lawyer husband का profession. चलो confusion नहीं करना है. D is married to a lawyer. ये कर देते हैं आपने. That means D is married. Right? Now no woman in the group is either an engineer or an accountant. So engineer is also male and accountant is also male. Now it says C the accountant. So C is the accountant. So सबसे पहले तो C is the accountant. C is a male and C is married to F who is a professor. So C is married to F. So C and F का pair बन गया and F is a professor बन गया. So I get ये भी अपना निकल गया. And C is a male, तो F is a female. ये भी अपने को पता चल गया. That means ये मेल ये मैरिड कर देते हैं एंड ये भी मैरिड कर देते हैं. ये मेल है ये फीमेल है इतना पता चल गया. नाउ डी क्या है नहीं पता unless you assume that housewife is a female, right? Now it is said that E is not a housewife. So E is not a housewife. That means E के दो ही professions possible हैं. Either E is the engineer or E is the lawyer. So E को या तो engineering में डाल सकता हूँ या तो lawyering में डाल सकता हूँ. Now I know any other data which I can fit along with this. The lawyer is married to D, who is a housewife. So whoever is the lawyer is married to D. So lawyer कौन हो सकता है? Lawyer can either be A or the lawyer can be B or the lawyer could be E. As of now, because lawyer कौन है मुझे नहीं पता. But if A is married to the housewife, then A is also a married person. So I know that B is unmarried and E is unmarried because A is married to the housewife and C and F तो already married हैं.
So the only other housewife is D. That means A and D has to be the couple, which means A becomes the lawyer, which means B is the other housewife and E has to be the engineer actually. So E is a male. So you got a pair of B and D wrong. आपको E and D आपने बनाया, but E is engineer and A is the married given. It's given A is married, so A has to be married to D, who is the housewife. That means A has to be the lawyer. So A and B and E and D. A and B and E and D. A and B, E and D. But someone is married to F. So F has to be part of one of the couples. So the couples is actually A and D, and the other couple is C and F. That means B and E are the married ones. So A lawyer को कैसे किया? See, A, the lawyer is married to D, and A is married to the housewife. इन दोनों को अगर कनेक्ट करें तो D housewife and A lawyer बन गया ना? Because A तो कुछ भी हो सकता है, professor, engineer, accountant. नहीं. A is married to the housewife and housewife हमने identify कर लिया था कि D है. Right? तो A अगर D से married है तो lawyer is married to D, तो A has to be the lawyer though. पर दो clues को मुझे connect करना पड़ेगा वहाँ से. बराबर छः. So now the question should be really easy to answer in this one. The married couples, right? A and D is one married couple. C and F is one married couple. E's profession, E is the engineer. And how many of the group are male? I can't assume that a housewife is necessarily a female. So cannot be assumed. Wife भी है ना? कौन सा? House husband is there. You can't go by the term there, right? Sure. Assume करना है तो assume कर सकते हैं कि 2, but then पंगा वाला question है ये. So the next one is mathematical in nature. Typical LRBI question of CAT. 5 women decide to go shopping to MG Road, Bangalore. They arrive at a designated meeting place in the order of Archana, Chandama, Dhiruka, Helen and Shanas. Each woman spent at least rupees 1,000. And below are some additional facts about how much they spent during their shopping spree. So you have to identify the amount spent by each woman in this case.
given only 4 amounts. Confined Dhenuka. धेनुका का मिल गया? नहीं मिला. नहीं मिला? उसी का नहीं मिला. उसी का नहीं मिला. बाकी कितना मिला? अर्चना का 2234, चेलम्मा का 1193, हेलेन का 2517 एंड शहनाज का 2571. Are you sure? Does that match all the clues? The one who spent 2234 arrived before the lady who spent 1193. One woman spent 1340 and she was not Dhenuka. I don't know where to put that. Which one? The one woman spent 1340 and but she was not Dhenuka. You are assuming that the first clue means 2234 came immediately before 1193. Immediately word use नहीं किया है. So it has to be before, but it may not be immediately before. But if we अर्चना चेलम्मा धेनुका हेलेन शहनाज वो ऑर्डर तो सेम ही रहेगा. Order तो वही है because they came in that order. That order is fixed. So according to this, the lowest someone paid is 1193. Be sure. I guess. तो फिर धेनुका का फिट नहीं हो रहा है फिर. हाँ. So could there be a smaller amount than that? 1000. 1000 exactly 1000. कैसे? सर अभी कोई और अमाउंट आ नहीं और जिसमें लिखा है कि दे स्पेंड एटलीस्ट ₹1000. At least 1000 है. हाँ तो 1000 से स्टार्ट कर सकते से हैं बेस कम अमाउंट. बट फिर फिट होगा. एग्जैक्ट अमाउंट सबका है. 4 लोगों का तो एग्जैक्ट अमाउंट फिट होता है और 5वां अमाउंट का भी क्लू तो है आपके पास. इसे ऐसे तो पांचों की 5 अलग अलग अमाउंट दिए कहाँ पे फिट करना वो प्रॉब्लम. 5 अमाउंट कहाँ पे दिए? So 2234, हाँ. 1193, हाँ. 1340 is not an amount. Okay, sorry, 1340. हाँ, 1340 is an amount. 1378 is not an amount. That is So not उसमें enough. x assume करना है x plus 1378 हाँ. that is equals to चलेगा. Something, और हाँ. सबसे ज़्यादा वाली 2517. हाँ. तो अभी x को ऐड करेंगे ना 1378 तो शायद वो शहनाज का आ जाए जिसने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया. तो फाइंड करो. सर मैंने किया तो मेरे को 2571 आ रहा है. So if you चलो, let's see. So basically, I know the order अर्चना चेलम्मा धेनुका हेलेन शहनाज वो 5 ऑर्डर तो दिए हुए हैं. And I got 4 amounts for sure. One is 2234, then 1193, then 1340, then this I don't know. So somebody spent X plus 1378 and one was 2517. Now it says that the woman who spent 2234 arrived before the lady who spent 1193. So 2234 is definitely coming before somebody. So Shehnaz is not 2234. And 1193 is definitely not Archana. कैसे सर? It says that the woman who spent 2234 arrived before 1193. So 2234 last नहीं हो सकती and 1193 first नहीं हो सकती.
बिकॉज 2234 वाली 1193 से पहले आ गई ना, 2234 वाली 1193 से पहले आ गई, सो 2234 लास्ट वाली तो नहीं हो सकती, तो उसके बाद कोई आ ही नहीं सकता। सर उसको तो पहले आना है, तो पहले तो 4 प्लेस है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो लास्ट प्लेस 2234 के लिए मैंने एलिमिनेट कर दिया है। अच्छा ऐसा। और 1193 का फर्स्ट प्लेस मैंने एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट किया, अभी तक डाला कुछ नहीं है, ओके। बट ये दो प्लेसेस एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट इट सेज वन वुमन स्पेंट 1340 एंड शी इज नॉट धेनुका, तो 1340 इज नॉट धेनुका, वो भी एलिमिनेट हो गया। ना वन वुमन स्पेंट 1378 मोर देन चेल्लम्मा, राइट, तो चेल्लम्मा का इनमें से जो भी अमाउंट होगा उससे 1378 ज्यादा इज द अदर वुमन, सो चेल्लम्मा प्लस 1378 will be the person who spent more than that. Now it says one woman spent 2157 and not Archana, so Archana is not 2517. Now Helen spent more than Dhanuka, so if Helen spent more than Dhanuka, then Helen cannot be the least amount. So as of now the least amount is 1193, Helen may not be 1193. And if it says Helen spent more than Dhanuka, then अभी तक के लिए maximum amount क्या है? 2517. So Dhanuka may not be 2517, but may not क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि last amount मुझे पता नहीं है क्या है. So as of now maybe eliminate मैं कर सकता हूँ, but I'm not sure whether this is actually eliminated or not. Okay. Right? Next it says Shehnaz spent the largest amount. Right? As of now the largest amount that I have is 2517. तो शहनाज हैज डेफिनेटली नॉट स्पेंड 2234, 1193 और 1340. सो इधर शहनाज हैज स्पेंड 2517 और इट कुड बी द लास्ट नंबर. सो इन दोनों x प्लस वाला, तो ये दोनों क्वांटिटीज अभी भी शहनाज की हो सकती है. एंड इफ चेल्लमा हैज स्पेंट द स्मॉलेस्ट अमाउंट, तो चेल्लमा का क्वांटिटी डेफिनेटली 2517, 1340 या 2234 तो नहीं हो सकता, राइट, एज ऑफ नाउ. सो इधर 1193 है और चेल्लमा's amount is the unknown quantity. तो सर अननोन नहीं हो सकता ना? कौन सा? चेल्लमा वाला. चेल्लमा का unknown भी नहीं हो सकता because x plus 1378 is, so automatically आपका unknown quantity eliminate हो गया. Even if we take, so चेल्लमा's amount बहुत ज़्यादा हो जाएगा. is fixed. चेल्लमा's amount is 1193 and the other spent the, now are we sure चेल्लमा's amount is 1193? Why can't it be the unknown amount? Why can't it be the unknown amount? First let's go there. सर 1000 लेंगे बेस को और उसमें ये ऐड करेंगे तो भी 2378 हो जाएगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा. क्या चीज? 2371 नहीं, बेस से 13, इन चारों फिगर्स के साथ 1378 का रिश्ता है. पर सर एटलीस्ट दे स्पेंड 1000, इसमें x प्लस ये वाली अमाउंट है ना, तो 1000 तो स्पेंड. चेल्लमा, see x is Chellamaz plus 1378. हाँ वही बोल रहा हूँ. So can I say the unknown, so Chellamaz amount अगर मैं x ले लेता हूँ, why can't Chellamaz, see one woman spent, so one of these amounts could be 1378 plus Chellamaz amount, right? I can put Chellamaz amount as x and 1378 can give me one of these figures. मतलब x को ऐड करके वो जो ऊपर अगर इन चारों में से कोई एक फिगर होना चाहिए ना. अभी वैसे मैं देखूं तो x plus 1378 करके मुझे इनमें से कोई एक फिगर लेके आना है. आई कैन नॉट डेफिनेटली ब्रिंग 1193 और 1340, राइट. नाउ बिटवीन 2234 एंड 2517 ऑल्सो x नहीं हो सकता, 2234 भी नहीं हो सकता. सो कैन आई से इफ दिस इज 2517, राइट, बिकॉज x की वैल्यू 1000 से तो बड़ी होनी है. सो 2517 में से मैं अगर 1378 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, then I get 9, I get 3, I get 1, 1. So I get 1139 as the unknown quantity. Let's assume for the time being that 1139 is my unknown quantity. So Chellama's smallest amount automatically becomes 1139. तो धेनुका का अमाउंट 1193 मेरा हो जाता है. कैसे धेनुका वाला? उस रो में वही बाकी था, उस कॉलम में वही बाकी था. धेनुका का अमाउंट 1139 जैसे अपने ने डाला, तो धेनुका का सिर्फ 1193 ही पॉसिबल है ना. पर सर धेनुका का कोई क्लू तो नहीं दिया है. धेनुका का क्लू नहीं दिया है, बट धेनुका का मैंने 1193 के अंदर और कौन हो सकता है अभी? हाँ धेनुका ही.
धेनुका ही रही, सो धेनुका को यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिया। पर धेनुका 1193 ले तो उसके पहले 22 वो होना चाहिए ना, क्या ना 2234 2234 इमीडिएटली पहले होना चाहिए या पहले होना चाहिए? मैंने पहले भी आपको कहा था द क्लू नेवर सेज इज इमीडिएटली बिफोर, उससे पहले होना चाहिए, इमीडिएटली पहले होना चाहिए क्लू नहीं बोल रहा है ना, so that is not violating the condition here. So now the maximum amount automatically becomes what? 2517. So Shehnaz is spending the largest amount, 2517 हो गया, right? अब बचा क्या? Now Helen का amount क्या हो सकता है? Helen could be either 2234 or 1340, but Helen spent more than Dhenuka. So if Dhenuka is 1193, Helen का क्या अमाउंट डालेंगे? 2234 हेलेन का अगर मैं 2234 डालूं तो अर्चना का 1340 हो जाएगा। और अर्चना तो ज्यादा स्पेंड करी है ना। अर्चना is spending more than whom? नहीं nobody. Archana is spending more than nobody. She arrived before. So 2234 arrived before 1193. तो 2234 अगर मैं तो मैं हेलेन को 2234 नहीं डाल सकता because 2234 came after 1193. Came before 1193. हेलेन 1193 तो धेनुका है, तो 2234 उसके पहले होना सो 2234 उसके पहले वाली होनी चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट अर्चना ही हो सकती है। दैट मींस हेलेन हैज टू बी 1340। नहीं सर, अर्चना तो आपने कहा ना इमीडिएट पहला नहीं हो सकता, मतलब ये हो नहीं सकता, नहीं होना जरूरी नहीं है इमीडिएट पहले। सर द क्लू वाज 2234 वाज बिफोर 1193, बट इमीडिएटली बिफोर नहीं लिखा है, तो उसके इस सर, दो ऐसे कदम आगे भी तो हो सकती है। कौन? 1340। 1340 हेलेन अच्छा ये चला गया ना। So the error that we were taking is we were assuming Chellama is one of these figures and X is the unknown figure. But Chellama could be the unknown figure. But उससे टेबल फुल नहीं होता। दूसरे assumption जिसमें से आपको फिगर 2571 आता है, उसमें से टेबल पूरा नहीं होता है, अटक जाते हैं धेनुका पे, जबकि ये assumption से आपका टेबल पूरा हो जाता है। सर तो अर्चना का तो मेरा आ ही गया था 2234 वाला, बाकी के एक नहीं है पहला आ गया। But अब समझ में आया, try it once more. If not this, then you have to consider the other possibility. You have to consider the other possibility because वो मैंने भी जब पहली बार ये सॉल्व किया था तो 2571 पे आकर अटक गया था और एक बंदे का नहीं आ रहा, फिर सोचा फिर why am I assuming 2571 has to be the x, right? You can assume it the other way, तो you get the second set of figures and उससे पूरा सॉल्व हो जाता है। Try this once more. It's a beautiful problem. बुक में है ये second exercise में। It teaches you not to assume that the unknown quantity has to be the calculated quantity. One of the present quantities could be the one. सर हेलन वाला कैसे दिया 1340? कौन सा? हेलन कुछ एलिमिनेशन से हो जाता है, जैसे जैसे टेबल फिल करते जाएंगे ना वो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। But try this once again. It's definitely worth doing because once you get the figures, the questions are very straightforward. But 1139 is the unknown figure. That is the thing that you have to be mindful of. तो अभी तो भगा सकता हूँ इसको आगे। हाँ ठीक है। Alright.
इसमें not all positions are fixed. No. So the question, you will get a basic arrangement, and then based on the questions you will be able to answer them. So you will only get a basic outline of most of the positions. सर डैश मतलब ऐसा Stage. That's the stage, so straight line. तो सर मैंने किया राइट से स्टार्ट करते हैं. Okay. G A B B फिर दो स्पेस खाली और फिर एक्सट्रीम लेफ्ट में C. You're going to the same one? Let's see. Those space में E F F E whatever. E F E F E is E F होगा. A F E. Then set होता है. G A और A G B it is. Actually. G का तो दिया एक्सट्रीम राइट में. Let's see. Now, 7 varsity basketball players are to be, so 7 players if I have to place 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A and G have to leave the luncheon early, so they must be seated at the extreme right. तो A and G या तो A and G ऐसे हो सकता है, I don't know दोनों में, तो extreme right में इन दोनों को बिठाना है. So A and G का fixed हो गया ऐसे. Then it says B receives the most valuable player trophy and must be in the center. तो B is extremely fixed. B का तो कोई पंगा ही नहीं है. And C and D are bitter rivals and therefore must be seated as far as possible. तो C and D को maximum distance पे मैं यहीं पे बिठा सकता हूँ. Which means E and F or E and F can be placed like this. So other than B, most of the other positions are not fixed. तो इतना basic arrangement आने के बाद अब questions में individual conditions के हिसाब से you can proceed. For example, the first question it says, which of the following cannot be seated at the either end? Cannot. तो G आ सकता है, A आ सकता है, D और C आ सकता है. F. हाँ तो F ही तो होगा. F नहीं आ सकता. The only person who cannot be seated is definitely F. तो F is the answer here. Then which of the following pair cannot be seated together? वो तो वही हो गया ना C अपना राइवल वाला. ना but वो option नहीं है. आपको options में से देना है आंसर. E A. E A. B D. Okay. Let's see. Arrangement क्या था मेरा? C या D साथ में थे. E या F, फिर F या E, फिर B, फिर D या C, फिर A या G and G या A. तो B and D तो टेक्निकली इस पोजीशन में आ सकते हैं. पर सर अगर B और C हुआ तो नहीं आ सकता. नहीं पॉसिबिलिटी नहीं. B and D की पॉसिबिलिटी तो है. ओके. राइट. उसी तरह C and F की पॉसिबिलिटी है ना. नहीं. है ना. सर बीच में E आ रहा है ना ना E को यहाँ पे डाल के मैं F को यहाँ पे भी तो डाल सकता हूँ. बिकॉज E and F का दोनों फिक्स्ड नहीं है. तो पॉसिबल है बिठाना. D and G को भी मैं बिठा सकता हूँ साथ में. लेकिन E and A, E यहाँ पे आएगा and A यहाँ पे आएगा. कोई कुछ भी कर लो साथ में तो कभी नहीं आ सकते. क्योंकि B सेंटर है. बिकॉज B उनको स्प्लिट करेगा ही करेगा. और तो ये बाजू D और C भी हो गया. कुछ भी हो जाए E and A को बाजू बाजू में बिठाने वाला कोई अरेंजमेंट ही पॉसिबल नहीं है. So that is done. And last, which of the following pair cannot occupy the seat on either side of B? तो B के दोनों बाजू E F C D तो हो सकता है. तो E F, एक सेकेंड. So F and D, D and E, E and G या C and F. इसमें से सब में कोई ना कोई तो B के ना ना वाला ना नहीं है ना? EG वाला जो है G कभी भी उसके पास नहीं आ सकता. तो E तो पैर कैनॉट ऑक्यूपाई. F and D दोनों आ सकते हैं, D and E दोनों आ सकते हैं, C and F दोनों आ सकते हैं, बट E and G दोनों नहीं आ. E आ सकता है लेकिन G कभी नहीं आ सकता. तो E and G as a pair cannot sit next to B. Getting it? As a pair they cannot sit. So यहाँ पे the questions are the tough ones. Solving it is not the tough part. Understanding the questions and how to interpret and put them is the tough part. असल ये वाला इजी था क्वेश्चन. Question easy था, but questions को interpretation देखना पड़ेगा. Okay. Again, this is an old cat question. Not tough.
अगेन इसमें कंडीशंस को समझ के क्वेश्चंस को इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा. यू कैन नॉट मेक एनी कॉमन डायग्राम फॉर एवरी क्वेश्चन. सो द प्रीवियस वन, just understand the data here. It says 2 days, Thursday and Friday, are left for campaigning before a major election, and the city administration has received requests from 5 political parties for taking out the procession on the route. So Congress का route is A, C, D, E. BJP is A, B, D, E. उसी तरह SP, BSP and CPM के routes दिए हैं. Now it says BD cannot be used as a cannot be used for political procession on Thursday due to religious procession, and the district administration has a policy of not allowing more than one procession to pass along the same street on the same day. मतलब एक बार C से 1 CED रास्ते पे कोई चला गया तो वापस CD यूज नहीं हो सकता. किसी पार्टी के लिए भी नहीं. एक पार्टी ने यूज करते तो उस दिन दूसरा पार्टी वहां से नहीं जा सकता. खत्म कहानी. So the administration must allow all parties to take out the procession during the 2 days. कुछ नहीं कर सकते. अभी क्वेश्चन को देखना पड़ेगा. कंडीशन समझ में आ गया. आई कीप द कंडीशंस ऑन द स्क्रीन एज वेल. द फर्स्ट वो भी एक बेसिक तो कर ले, रूट और देख लो, डायग्राम है यहाँ पे देख लो. कांग्रेस कंडीशंस डाले हुए हैं. अब द कांग्रेस प्रोसेशन कैन बी अलाउड व्हेन on either day. मतलब और कुछ भी ना देखे तो मैं सबके लिए अलग अलग डायग्राम कर रहा हूँ. बहुत ज्यादा डायग्राम्स कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे. डोंट डू दैट. सर रूट तो दिया है ना पर. हाँ बट डोंट डू इट बिकॉज कौन से थर्सडे को कौन, फ्राइडे को कौन. उसके लिए अलग से करना. हाँ बहुत पंगे होंगे. डायग्राम मत बनाओ. क्वेश्चन के हिसाब से वो एक ही डायग्राम इनफ है आपके लिए. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. पर सर सबके रूट्स अलग अलग हैं तो फिर ऐसे कंफ्यूजन होगा. ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन को देखो. इट सेज कांग्रेस प्रोसेशन कैन बी अलाउड ऑन व्हाट डे. either day. मतलब नॉट एक्चुअली. if कांग्रेस का पहला प्रोसेशन है सब नहीं, कांग्रेस का पहला प्रोसेशन नहीं है. तो if you assume it वैसे दिया भी तो कहाँ है कुछ. दिया हुआ डेटा. Here is where the data is important. See, it says BD cannot be used for political procession on Thursday. Right? Now if BD cannot be on a political procession, then BJP definitely has to go on Friday. BJP को तो थर्सडे पर डाल नहीं सकते आप. DE यूज हो जाएगा. और बीजेपी को अगर फ्राइडे फॉर श्योर डालना पड़ेगा तो DE फ्राइडे को यूज हो गया तो कांग्रेस यूज नहीं कर सकता उसको. तो कांग्रेस को तो बाय डिफॉल्ट सिर्फ थर्सडे यूज करना पड़ेगा. फ्राइडे को तो कांग्रेस यूज ही नहीं कर पाएगा बिकॉज बीजेपी को तो बाय डिफॉल्ट फ्राइडे ही जाना पड़ेगा. तो सर ये बाकी की 5 पार्टी डोंट वरी अबाउट देम. क्यों? बाकी का कुछ ना कुछ सेटिंग करके आ जाएगा. बट इतना तो बेसिक है ना कि फ्राइडे को तो 100% बीजेपी को जाना पड़ेगा. बीजेपी के पास ऑप्शन ही नहीं है थर्सडे का. तो उसके हिसाब से कांग्रेस के पास फ्राइडे का ऑप्शन नहीं है तो कांग्रेस को तो ओनली ऑन थर्सडे अलाउड है. दूसरे बाकी की जो 3 पार्टी उसमें बीडी दिया भी नहीं है वैसे. दिया भी नहीं है. वी डोंट वरी अबाउट इट आल्सो. इस क्वेश्चन के लिए तो द फर्स्ट टू आर इनफ. सो नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. फर्स्ट तो ट्रू है बिकॉज रूट अलग है तो दे कैन टेक आउट ऑन सेम डे. हाँ सीपीएम का थर्सडे तो नहीं चलेगा. चलेगा क्योंकि बीडी अलाउड नहीं है थर्सडे. करेक्ट. थर्ड वाला भी सी है तो फोर्थ ही रहा. पहले 3 तो पॉसिबल है तो बाय डिफॉल्ट इट हैज टू द फोर्थ वन. That Congress and BSP can take out the procession on the same day, not possible because Congress only on Thursday, right? तो BSP थर्सडे को हो सकता है क्योंकि BJP फ्राइडे है तो ऑब्वियसली फोर्थ वन ही होगा. कुछ ना कुछ कंडीशन बीच में अटक आएगा. बट वी डोंट हैव टू वरी कि BSP को कौन सा डे देना है क्योंकि 1 2 3 एलिमिनेट हो गया है. तो बाय डिफॉल्ट फोर्थ वन हैज टू बी द आंसर. सोचने का कहता था तो भी इजी था. फोर्थ वाला भी टेक्निकली इसमें ऐसे पहले 3 सही है तो निकाल दिया बट फोर्थ वाला भी पॉसिबल. तो विल यू बी एबल टू अरेंज ऑल द 5 पार्टीज. नहीं हो पाएगा. ओनली कांग्रेस एंड बीएस. सो अगर कांग्रेस एंड BSP को सेम डे पे डालो टेक्निकली दोनों को थर्सडे डालना पड़ेगा
तो बाकी तीनों फ्राइडे को आ सकते हैं, कहीं ना कहीं जाके अटकेगी गाड़ी। इसीलिए एक्सेसिव नहीं सोचने का, एलिमिनेशन से ही क्विकली होगा ये। चलो अटका तो नहीं था, हाँ अटका तो नहीं था, का नहीं था, बट एग्जाम के अंदर आप क्या करना है, आप तो सारे के सारे पॉसिबिलिटीज पहले ड्रॉ करने वाले थे। एक्चुअली यू डोंट रिक्वायर दैट मच टाइम टू सॉल्व इट, बट इफ यू थिंक इट आई हैव टू मेक आउट ऑल द पॉसिबिलिटीज फर्स्ट, तो गाड़ी अटक गई वहां पे। सिर्फ सीक्वेंस में तो एडजेसेंट कहां से ढूंढेंगे? एक्स इन ब्लू। सीक्वेंस इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट? नहीं, तो एडजेसेंट कहां से आएगा? एडजेसेंट तो एडजेसेंट बाजू बाजू, जो लाइन में तो एडजेसेंट होगा ही ना यार। तो सर एडजेसेंट एंगल वो पढ़ते थे स्कूल में, तो ये वाला पार्ट हुआ ना एडजेसेंट वाला जो इधर। एडजेसेंट का लिटरल मतलब है बाजू वाला। एडजेसेंट इन इंग्लिश मींस बाजू वाला। ओके। एडजेसेंट लिटरली मींस बाजू वाला। तो एंगल तो मैथ्स में क्या पढ़ते थे? geometry नहीं, ज्योमेट्री में भी इसका एडजेसेंट एंगल ये हो गया ना, हाँ, इसका वही तो। एंड इसका ये भी हो गया। तो जो इमीडिएट बाजू वाला है वो एडजेसेंट है। एडजेसेंट ओनली मींस बाजू वाला। अच्छा। सो इन अ स्ट्रेट लाइन ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है। ओके। एक्स लिव्स इन ब्लू। ओके, इजी है ये तो, pretty straightforward। एक्स ब्लू में रहेगा। Right? It says the green is adjacent to the blue. So green adjacent to the blue can be done in two ways. And yellow is between green and red. So yellow is between green and red, or yellow is between green and red can be done like this. Now Z lives in the yellow house. Then X does not live adjacent to Z. खत्म, इसके आगे मुझे देखना ही नहीं है। X lives in the blue house. तो सर ग्रीन और रेड में उसमें y या q आ सकते हैं। कोई Y या Q में से interchange हो सकते हैं। हाँ, but cannot be determined. Okay. This is nice. This is operations management type problem here. My bag can carry no more than 10 books. I must carry at least one book each of management, maths, physics and fiction. For every management book I carry, I must carry 2 or more fiction books. For every mathematics book I must carry 2 or more physics book. I earn 4, 3, 2 and 1 points for each management, mathematics, physics and fiction book, respectively. I carry in my bag. I want to maximize the points I can carry by carrying the most appropriate combination of books in my bag. So what is the maximum points that I can earn? हाँ, ये तो OM में आता था। Operations management type problem. ये सर शायद वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट का टॉपिक है। But have basic math. Don't get into complex things. Basic फंडे से आ जाएगा।
लॉजिकली अप्रोच करो प्रॉब्लम को. Okay. बिल्कुल वही है. कैसे? सर सेकंड अरेंजमेंट से. Okay. I mean आप different arrangements बनाते गए. Yeah, I made 2 arrangements. Okay. So hit and run से तो आ जाता है, hit and trial से तो आ जाता है. Same hit and trial आ रहा है. चलो let me see logically अगर करते तो एक झटके में कैसे आ सकता है. It says you cannot carry more than 10 books. So you have got a maximum of 10 books which can be carried, and you must carry at least one book of each, right? Plus condition क्या है? For every management book I must carry 2 or more fiction books. तो management के साथ 2 fiction तो compulsory है. And for every maths I must carry 2 or more physics. तो maths के साथ 2 physics भी compulsory है. So it says I earn 4 for management, 3 for mathematics, 2 for physics and 1 point each for fiction. तो अगर ये कॉम्बिनेशन में उठाता हूँ तो मेरे पास 6 पॉइंट्स हैं. ये कॉम्बिनेशन अगर मैं उठाता हूँ तो मेरे पास 7 पॉइंट्स हैं. और मेरे पास कोई एक ऐसा बुक है जो रह जाता है? नहीं. सिर्फ 2 बुक रह जाती है ना? नहीं, मेरे पास मैनेजमेंट, मैथ्स, फिजिक्स एंड फिक्शन का सबका मिनिमम एक एक बुक तो होना ही है. होल्ड ऑन, राइट? तो आई कैन पिक अप 3 बुक्स एट अ टाइम. अब दोनों का एक एक बंडल तो मिनिमम चाहिए मुझे, क्योंकि मैनेजमेंट, फिक्शन, मैथ्स, फिजिक्स सब में से आना चाहिए. तो मैंने 6 बुक्स भर दिए, 6 + 7 कर दिया मैंने. अब कितने बुक्स बाकी है मेरे पास? टोटल 6 बुक्स आ चुके हैं, 4 बुक्स बाकी है, यानी मैं एक और बंडल उठा सकता हूँ. कौन सा बंडल को उठाऊं? जो 2 बुक बाकी है वो ना. कौन से 2 बुक बाकी है? मैनेजमेंट, फिक्शन, मैथ्स, फिजिक्स, चारों एक एक तो आ ही गए हैं ना. सी, इफ आई पिक मैनेजमेंट, it says for every management book I must carry 2 or more fiction. तो मैनेजमेंट का एक भी बुक आता है तो साथ में 2 फिक्शन तो साथ में लेना ही है. यानी कि मैनेजमेंट जैसे ही उठा तो टोटल 6 पॉइंट्स तो ऐड करेगा और 3 बुक्स ऐड करेगा. और मैथ्स एंड फिजिक्स का कॉम्बिनेशन ऐसा पॉसिबल है, तो इस कॉम्बिनेशन से मुझे 7 पॉइंट मिलता है. अब दोनों का एक एक कॉम्बिनेशन, तो मुझे सारे बुक्स एक एक तो चाहिए. तो जैसे ही मैंने मैनेजमेंट उठाया, मैंने 2 फिक्शन भी ले लिया. 6 books 13. एंड जैसे ही मैथमेटिक्स लिया, 2 फिजिक्स भी ले लिया. अब भी मुझे, अब मैं कोई भी बुक उठा सकता हूँ क्योंकि सारे बुक एक एक तो आ गए हैं. तो इन दोनों में से मैं इस वाले को क्यों उठाऊं? मैं मैथ्स एंड फिजिक्स का उठाऊंगा क्योंकि 7 पॉइंट मिलते हैं. तो मैनेजमेंट को उठा लो तो 4 बार 4 हो जाएंगे ना. हर मैनेजमेंट के साथ साथ 2 फिक्शन भी तो उठाना पड़ेगा, राइट? हर मैनेजमेंट के साथ 2 फिक्शन उठाना पड़ेगा, लेकिन वो मजा नहीं है. तो हर मैथ्स के साथ 2 फिजिक्स उठाऊंगा तो पॉइंट्स मेरे को ज्यादा मिलेंगे. तो मैं मैथ्स एंड फिजिक्स का एक और कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ. तो अभी तक तो मेरे 20 पॉइंट्स बन गए, राइट? अब मेरे पास बुक्स कितने हुए? टोटल मैंने 9 बुक उठा लिए, मैं एक और बुक उठा सकता हूँ. अब मजा तो मैनेजमेंट को उठाने में है, लेकिन मैनेजमेंट को उठाऊंगा तो मुझे साथ में फिक्शन लेना पड़ेगा और जगह नहीं है, तो मैनेजमेंट को ले नहीं सकता. मैथ्स को भी ले नहीं सकता क्योंकि मैथ्स के साथ 2 फिजिक्स लेने पड़ेंगे, उतनी जगह नहीं है. तो फिक्शन या तो फिजिक्स में से कोई एक उठाओ. फिजिक्स का उठाना बेटर है क्योंकि 2 पॉइंट है. सो 22 पॉइंट्स में मैक्स आउट कर सकता हूँ. बट आपको तुक्केबाजी में करना पड़ा, तो किस्मत ऐसी है सेकंड शॉट में आ गया. सर मैंने ना दोनों को अलग कर दिया. मैनेजमेंट वाला एक सीरीज और ये मैथ्स वाली एक सीरीज. फिर वो जो पहला था उसमें ऐड करता गया. मैनेजमेंट लिया, फिर उसमें मैंने 7 बुक्स डाल दी ये फिक्शन की, और बाकी की मैथ्स और वो कौन सा था, क्या आपने क्या डाला? एक मैनेजमेंट का डाला. हाँ, 4 पॉइंट. फिर आई गेट 1 2 3 4 5 6 7 बुक्स ऑफ फिक्शन. हाँ. तो फिक्शन के 7 पॉइंट. यस. फिर एंड 3 पॉइंट्स फॉर मैथ्स. एक मैथ्स का 3 पॉइंट. हाँ, और एक 2 पॉइंट्स का फिजिक्स. बट आपको मैथ्स के हर बुक के साथ 2 फिजिक्स के बुक लेने पड़ेंगे ना.
सर वो हाँ 2 पॉइंट्स है और ना, तो अलग 4 अलग पॉइंट मिल गए आपको फिजिक्स के, राइट? तो इसका टोटल कितना हुआ? ये तो आपके 18 पॉइंट ही हुए भाई, 22 नहीं हुए। 10 बुक्स 10 होगी ना? बुक्स 10 हो गए, पॉइंट 18 हो गए। हाँ ये इसमें 18 हुआ है। हाँ। दूसरा मैंने मैथ्स के साथ किया तो हाँ। उसमें 22 हो गया ना मेरा। हाँ बट अगेन ये एक ही स्टेप में आ जाता, तो 5-10 सेकंड अगर तो सर वो 15-20 आपने एक्स क्यों किया, मेरे को वही नहीं समझ में आया। मैंने अलग किया तो आप भी अलग ले लो ना मेरे जैसे। मुझे सी सारी किताबें एक एक तो चाहिए, तो एक तो मुझे मैनेजमेंट, एक मैथ्स का, एक फिक्शन का और एक फिजिक्स का तो मिनिमम उठाना ही पड़ेगा, राइट? अब मैनेजमेंट का क्या है कि मैनेजमेंट के साथ मुझे मिनिमम फॉर मैनेजमेंट 2 फिक्शन तो चाहिए चाहिए, तो ये एक्सेसिव फिक्शन की जरूरत नहीं है। ओके। एंड हर मैथ्स के साथ 2 फिजिक्स तो चाहिए, तो एक्स्ट्रा फिजिक्स अलग से देखने की जरूरत नहीं है। तो अभी मुझे इतना तो मिनिमम उठाना ही पड़ेगा। अब इसके ऊपर क्या उठाना है वो मैं देख रहा हूँ। सो आई टुक एवरीथिंग इन एक्सेस। लॉजिकली करेंगे तो एक सेट स्टेप में आ जाएगा, एंड ये लॉजिकल थिंकिंग करना सोचो, क्योंकि एग्जाम में ये तो सिंपल है, बट आगे कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होता है तो हिट एंड रन से करने से बेटर है लॉजिकली ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम, तो यू कैन मेक इट इजियर स्टेप्स। ये छोटा प्रॉब्लम था, बट ये थॉट प्रोसेस अगर आप क्लियर करते हो तो जो बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें इजी हो जाएगा। फिर आपको वो अप्रोच नहीं करना पड़ेगा कि सारी पॉसिबिलिटीज में से कौन सा काम का है। हाउ डू यू नो कि 22 से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट? यू हैव नॉट ट्राइड ऑल द पॉसिबिलिटीज। क्योंकि सर बाकी के जो 2 थे वो तो एक एक ही लेंगे ना, तो कम ही होने वाले हैं पॉइंट्स। सिर्फ इसमें ही पैकेज मिल रहा है, इसलिए सिर्फ मैंने ये 2 ही लिए। वही, बट फिर भी 2 बार करना पड़ा ना, आधे टाइम में हो जाता। चलो
क्यों एनक्लोजर्स होना चाहिए ना, क्योंकि x तो है ही नहीं क्या? ना, x है हाँ It says there are 10 animals, 2 each of lion, panther, bison, bear and deer in a zoo. And the enclosures in the zoo are X, Y, Z, P and Q. So X, Y, Z, P and Q are my enclosures. And they are allotted to Jack, Mohan, Charlie, Suman and Rita. Okay, but not necessarily in that order. Now, lion and deer cannot be together. तो जहाँ पे lion आ गया वहाँ पे deer नहीं हो सकता. And a panther cannot be with either a deer or a bison. Then Suman attends to animals from among bison, deer, bear and panther only. तो इतना तो sure है कि Suman definitely does not attend to a lion. And Mohan attends to lion and panther. तो Mohan का lion and panther is pretty much fixed because every person has to be attending to 2 animals. तो Mohan का तो lion and panther fixed है. And Jack does not attend to deer, lion or bison. तो 3 eliminate हो गए, deer, lion and bison. So panther and bear इसका भी fix हो गया Jack का. Now X, Y and Z are allotted to Mohan, Jack and Rita respectively. तो X is to Mohan, Y is to Jack and Z is allotted to Rita. And Mohan ka I also know that one is a lion and one is a panther. For Jack, again I know one is a bear and one is a panther. So panthers तो मेरे 2 eliminate हो गए. Every element के टोटल तो दोनों panther तो मेरे set हो गए हैं. जो है हाँ? सुमन जो है हाँ. वो लायन को अटेंड करेगी नहीं और वो अटेंड करती है बाइसन, डियर, बेयर और पैंथर को. में से किसी दो को टोटल 2 को ही अटेंड कर सकते हैं कोई भी. हाँ, पर तो लायन के साथ डियर जाएगा नहीं और पैंथर के साथ बाइसन जाएगा नहीं. हाँ. तो बेयर और पैंथर 2 ही ऑप्शन रहे ना. Let's see. के पास तो सुमन के पास बेयर और पैंथर 2 ही ऑप्शन रहे ना. बेयर एंड डियर भी तो हो सकता है. तो सर डियर लायन के साथ ही जाएगा ना. तो सुमन के पास लायन का है. अरे एक मिनट सर, डियर पैंथर के साथ नहीं जाएगा, वो क्लू में दिया था. हाँ रुको ना, करते हैं ना. सो इतना अपना सेट हो गया. मोहन एक्स लायन पैंथर फिट है, जैक इज बेयर एंड पैंथर फिट है. एंड इट सेज एक्स एंड क्यू एनक्लोजर्स हैव 1 एनिमल ऑफ द सेम स्पीशीज. तो एक्स एंड क्यू में कॉमन वाला पैंथर तो नहीं हो सकता क्योंकि पैंथर 2 हो चुके हैं. तो क्यू के अंदर एक तो लायन होना चाहिए. एंड बिकॉज सुमन डज नॉट टेंड टू अ लायन, तो सुमन विल बी फॉर पी, विच मीन्स शालिनी गोज इन फॉर क्यू. ये फिट हो गया. अब मेरे लायन भी निकल गए हैं. अब बचा क्या? बाइसन, बेयर एंड डियर. राइट. तो लायन के साथ मैं डियर तो डाल नहीं सकता हूं. तो लायन के साथ मेरा क्या आ सकता है? बाइसन या बेयर. शालिनी के पार या तो मैं बाइसन डाल सकता हूं या तो मैं बेयर डाल सकता हूं यहाँ पे. नाउ इट सेज, अब दूसरे थोड़े और क्लूज भी थे दैट Z एंड P हैव द सेम पेयर ऑफ एनिमल्स. तो Z एंड P के अंदर अगर मुझे सेम पेयर डालना है तो मैं बेयर को यहाँ पे डाल सकता हूँ, बाइसन को नहीं डाल सकता क्योंकि फिर बाइसन इन दोनों में से एक में ही आ पाएगा दूसरा. तो यहाँ पे फॉर श्योर बेयर हो गया. सर बाइसन क्यों नहीं डाला? अगर मैंने यहाँ पे बाइसन डाल दिया
तो इन दोनों का तो दोनों एनिमल सेम होने चाहिए ना, और एक बाइसन मैं ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर दूंगा अगर, तो दो बाइसन मेरे पास नहीं रहे, मेरे पास वही एनिमल्स मैं यूज कर सकता हूँ जो दो दो हैं फॉर जेड एंड पी। अच्छा इसलिए बैर उधर डाल, तो यहाँ पे फॉर श्योर बैर डाल देना है, क्योंकि बैर खत्म हो गया तो बचा क्या, बाइसन एंड डियर, तो दोनों के अंदर मुझे बाइसन एंड डियर ही डालना पड़ेगा। सो एनिमल्स अटेंडेड बाय शालिनी was bear and lion. सर मोहन का लायन पैंथर वाला आ गया था। हाँ वो तो डायरेक्टली आ गया था, मोहन इज लायन एंड पैंथर डायरेक्टली दिया हुआ है, जैक का भी डायरेक्टली दिया हुआ है, 3 तो एलिमिनेट कर दिया, तो मोहन एंड जैक का तो फॉर श्योर था। तो सर जैक का 3 एलिमिनेट कर दिया, ऐसा तो 5 ही हैं, 3 एलिमिनेट हो गए तो जो बचे 2 वही डालना ही पड़ेगा उसको। हो गया डन। तो सर सुमन का बैर और पैंथर रहा ना, सुमन का बाइसन एंड डियर, शालिनी का लायन एंड बैर। Done. This is easy, very easy actually. 80 kg of stored material is to be transported to a location 10 kilometers away. Any number of couriers can be used to transport the material and can be packed in any number of units, 10, 20 or 40 kgs. Courier charges are rupees 10 per hour. And couriers travel at the speed of 10 kilometers per hour if they are not carrying a load, 5 kilometers per hour if 10 kg, 2 kmph if 20 and 1 kmph is if 40. A courier cannot carry more than 40 kg of load. Then the maximum cost at which 80 kg of store material can be, the minimum cost at which 80 kg of store material can be transported is what? ये भी हुआ वाला है। हाँ बहुत सिंपल है। तो सर पहला ऑप्शन जो है कि 10 की स्पीड है चलेगा, वो तो आएगा ही नहीं क्योंकि लोड तो पहुंचाना ही है हमको। तो सर बाकी का ही देखा है ना 5 किलोमीटर वाला 10 kg के हाथ पे सर इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि एक पैकेज पहुंचा के फिर से आएगा और फिर से जाएगा, तो मना और ज़्यादा हो जाएगा। अहमदाबाद का रिक्शा ड्राइवर नहीं है कि रिटर्न भाड़ा भी चाहिए। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट द प्रॉब्लम, थिंक एकदम बेसिक।
सर मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन में ही नहीं है। क्या 20 रुपीस। अबे 20 रुपए में कैसे पहुंचा रहा है? नहीं सर ऐसे नहीं, 5 की स्पीड से चलेगा तो 2 आवर्स में पहुंचने के लिए, ठीक है, और पर आवर 10। एक सेकंड, टोटल 2 घंटे पहुंचेंगे। हाँ हाँ, और 10 का प्राइस है पर आवर, सो 5 की स्पीड में अगर तू पहुंचा रहा है तो टोटल टाइम यहाँ पे 2 घंटे लगेंगे, ये 5 घंटे लगेंगे, ये 10 घंटे लगेंगे। तो सर इसका 20 हो जाएगा। सो पहले वाले का कॉस्ट 20 हो जाएगा, हाँ, दूसरे वाले का कॉस्ट 50 हो जाएगा, और तीसरे वाले का और 100। तीसरे वाले का कॉस्ट 100 हो जाएगा। तो पहला आंसर है ना 20 वाला। ये तो 10 केजी लोड के लिए है ना, तो 10 केजी नहीं, सारे लोड के लिए। हाँ, 10 केजी का लोड अगर 5 के स्पीड से 2 घंटे में पहुंचता है तो 20 रुपए लगते हैं तो सर टोटल। इसलिए मैंने आपको पूछा था कि वो फिर से आ जाए तो फिर से नहीं गिनना है बेटा, आपने सिर्फ 10 केजी लोड के लिए टोटल 80 केजी लोड मुझे ट्रांसपोर्ट करना है। into 8 into 4 तो ये इंटू 8 करना पड़ेगा, ये इंटू 4 करना पड़ेगा, ये इंटू 2 करना पड़ेगा। 160, 200 और 200। सो पहला वाला 160 का लोड उठा सकता है, दूसरा वाला 200 में कर सकता है, तीसरा वाला भी 200 में कर सकता है। तो सबसे सस्ता वाला फर्स्ट ऑप्शन, तो 160 रुपीज में आप कर सकते हो। तो सर ये ऐसा हुआ ना कि 10 केजी का लोड लिया, पहुंचा, फिर आया, फिर पहुंचा, वापस आने का ट्रिप नहीं करने का, एक ट्रिप का 10 रुपये, 10 केजी पहुंचाने के 10 रुपए। अब तू जाता है आता है वो मैं नहीं देखूंगा। अच्छा, मैं 10 केजी सोचा कि पहुंचाने के 10 रुपए। पूरे ट्रक में 10-10 केजी के 8 पैकेज डालिए। 10 केजी ही लोड उठा सकता है वो, कितना ट्रक लिया? तो 8 लोड लगेंगे, 8 ट्रिप लगेंगे उसके। सो टेक्निकली स्पीकिंग द बेस्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट वन, 160 के हिसाब से कर सकते हैं। चलो लास्ट वन, एंड दिस डज नॉट रिक्वायर पेन पेपर, इट जस्ट रिक्वायर्स टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। There are 3 bags. All the 3 bags have a label on them. Bag having red socks labeled red. Bag with black socks is labeled black, and the third bag having mixed from both black and red is labeled mixed. Now all the 3 bags with the labels are completely mislabeled, and you will be allowed to take only one piece of socks from a bag. Then which bag would you choose to relabel all the 3 bags correctly? प्रोबेबिलिटी वाला हो गया ना ये तो। One piece of Probability sock कुछ भी नहीं है। from a bag, मतलब तीनों में से 3 bags हैं, एक में सिर्फ रेड सॉक्स हैं, मतलब तीनों में से you can take one या तीनों बैग में से कोई भी एक बैग में से you can take एक one? ही बैग में से एक ही सॉक निकाल सकते हो। रेड, ब्लैक और मिक्स। तो सर प्रॉब्लम ये होगा कि मिक्स्ड है, उसमें से निकला और रेड आया, तो उसमें हमने रेड वाला डाल दिया लेबल, तो गलती हो जाएगी। क्यों? तीनों लेवल सर, गलत black भी है। हो सकता है। आपको पता है तीनों लेवल गलत है। हाँ वो तो है। आपको Mixed पता है में कि से मैंने रेड निकाला, हाँ तो उसको तो मैं डाल ही दूंगा ना कि रेड, पर उसमें से ब्लैक भी हो सकता है। हाँ तो अगर हाँ तो ब्लैक निकलेगा तो ब्लैक डाल दोगे। हाँ तो गलत हो गया ना। क्यों गलत हो गया? अरे मिक्स की बैग है। जिस पे मिक्स लिखा है वो मिक्स की बैग नहीं है, तीनों लेवल गलत है। रेड के अंदर रेड था, ब्लैक के अंदर ब्लैक था, मिक्स में मिक्स था, फिर सब लेवल गड़बड़ हो गए, यानी एक भी सही लेवल नहीं है। अभी जो आपके सामने है एक भी लेवल सही नहीं है। You will take mixed. मिक्स ही लेंगे ना तो मिक्स में से उठा के will you be able to identify all 3 correctly? मतलब red you take out mixed, हाँ तो उसमें से black निकला for example, हाँ तो वो black हो वो गया। ब्लैक हो गया। निकालना तो एक ही बार है। निकालने एक ही बार है। वही तो प्रॉब्लम है। हाँ तीनों बैग में से एक चेक कर सकते हो तो मिल जाएगा। वो तो यार दर्द का बच्चा कर लेगा, अगर अपने कैट के लिए कर रहा है। सेकंड का भी कर देगा सर, लेकिन मिक्स में भी प्रॉब्लम तो हो ही सकता है ना। क्या? रेड निकाला और अंदर ब्लैक हुआ तो अपने को क्या मालूम है। जो मिक्स्ड लेबल है हाँ उसके अंदर तो या तो प्योर रेड है या तो प्योर ब्लैक है। मिक्स तो 100% नहीं है। अच्छा मिक्स तो 100% नहीं है, तो मिक्स में से अगर निकाला और रेड निकला तो वो तो रेड तो उस पे रेड का लेबल लगा दो, राइट? तो जिस पे भी रेड का लेबल है वो क्या होगा? वो मिक्स हो गया। ब्लैक ब्लैक नहीं हो सकता ना। नहीं, रेड का लेबल रेड हो गया मिक्स की जगह पे, तो मिक्स रेड हो गया, ब्लैक तो ब्लैक। हाँ ब्लैक तीनों गलत है, तो बाकी तो भी इंटरचेंज हो गए ना। हाँ ओके। अच्छा तो हो गया। ब्लैक वाला मिक्स हो गया, मिक्स वाला ब्लैक हो हो गया। गया ना। तो मैं रेड या ब्लैक में से नहीं उठा सकता, क्योंकि रेड में से जो उठाता हूँ और जो भी
होगा वही ब्लैक उठाने से भी होगा, रेड मार्किंग में से उठाऊंगा और जो सोचूंगा ब्लैक उठा के भी सोचूंगा तो वही, तो दो ऑप्शन तो सेम, तो रेड और ब्लैक तो आंसर है ही नहीं। सो द ओनली थिंग इज मिक्स्ड में से उठा के विल बी एबल टू डिटरमाइन द आंसर इज यस। तो मिक्स वाली बैग है उसमें से रेड दिख रहा है तो उसको रेड कर दो और मिक्स है उसको ब्लैक और ब्लैक को मिक्स कर दो। अच्छा हाँ हो गया। Okay. So technically you have to take it out from the mixed bag. That's it. Basic type fundamental exercises we are doing it. ये बेसिक था थोड़ा बहुत। अगली बार let's see कौन से एक्सरसाइज करेंगे। गेम थियरी एंड मैथ बेस्ड क्वेश्चन जब चालू होंगे तब, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते जाएंगे, लेंथ ऑफ द क्वेश्चन एंड लेंथ ऑफ द टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन बढ़ता जाएगा।